Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. Today we will discuss a new chapter from class 11 Snapshots book. That is chapter number 3 Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesa Iyengar. So first of all we'll discuss main characters of this chapter and then detailed summary. So let's start with the main character. First character Shyama. Shyama the narrator of the story. Shyama इस story के narrator है. Narrator means who narrate the story, जो story को बताते हैं. Okay, is an old and experienced man. वो old है और एक experienced man है. Who had faith in traditional belief, और उनका traditional belief में बहुत ज़्यादा faith है. Next factor रंगा. रंगा was the son of an accountant. रंगा accountant के son थे and went to Bangalore for studies. और वो Bangalore गए थे study करने के लिए. He was well educated and well mannered boy. जो well educated और well mannered boy थे. Next factor रत्ना. रत्ना was Rama Rao's 11-year-old niece. रत्ना रामा राव की 11-year-old niece थी. Now detailed summary of this chapter. The story. Ranga's marriage is located in Hosahalli, a village in the former Mysore state, now a part of Karnataka. Okay. So story. Ranga's marriage मैसूर स्टेट की होसाहली विलेज की है. ओके, जो कि अभी कर्नाटका का पार्ट है. 10 years ago the village didn't have many people who knew English. ओके, सो 10 years पहले विलेज में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो कि इंग्लिश बोल सकते थे. The village accountant's son Ranga was the first one to be sent to Bangalore to study. So village accountant के son Ranga first थे जिनको बेंगलोर भेजा गया था स्टडी करने के लिए. A decade ago, the use of English language was not widespread in the narrator's village. Okay, so decade ago means 10 years पहले narrator के village में जो English language थी वो इतनी ज़्यादा widespread नहीं थी. That was why Ranga's homecoming was a great event. इसीलिए रंगा की homecoming एक great event था. Okay, people rushed to his doorstep announcing that Ranga, who had gone to Bangalore for his studies, had come back. Okay, so लोग भागते हुए रंगा के डोरस्टेप तक आते हैं और अनाउंस करते हुए आते हैं कि रंगा जो कि बेंगलोर गया था स्टडी करने के लिए वो वापस आ गया है. They flocked together to have a look. Okay, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं रंगा को देखने के लिए कि उसमें कोई चेंज आया है या नहीं. The narrator too went and stood in the courtyard. नरेटर भी ये देखने के लिए जाते हैं और वो रंगा के कोर्टयार्ड में खड़े हो जाते हैं. Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. इतने सारे लोगों को देख के रंगा अपने फेस पे स्माइल रखता हुआ बाहर आया. Everybody was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left the village. जब लोगों ने रंगा को देखा तो वो सरप्राइज हो गए, वो हैरान हो गए रंगा को देख के, क्योंकि रंगा में कोई भी चेंज नहीं था. रंगा बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि वो 6 मंथ पहले, जैसे जब उसने अपने विलेज को छोड़ा था वैसे ही वो अभी भी था. वंस दे रियलाइज दैट रंगा वॉज अनचेंज फिजिकली. जब उनको रियलाइज हो गया कि रंगा फिजिकली अनचेंज था, उसमें कोई चेंज नहीं आया था, द क्राउड ऑफ पीपल डिसअपियर. तो क्राउड ऑफ पीपल वहाँ से डिसअपियर हो गया, लोग वहाँ से स्लोली चले गए. ओनली द नरेटर श्यामा कंटिन्यू टू स्टैंड देयर. सिर्फ श्यामा जो कि नरेटर हैं, ठीक है, वो वहीं पे रहे. आफ्टर एवरीवन हैड गॉन द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा हाउ ही वाज. ओके, जब सभी के सभी वहाँ से चले गए तो नरेटर वहीं पे रहे और नरेटर ने रंगप्पा से पूछा कि वो कैसे थे. रंगा नोटिस्ड हिम, केम नियर हिम एंड ग्रीटेड हिम रिस्पेक्टफुली. रंगा ने नोटिस किया नरेटर को, ठीक है, और उनके नज़दीक आए और उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया. मीन्स उनके फीट को उन्होंने टच किया. रंगा वॉज वर्डली वाइज यंग मैन. रंगा वाइज मैन था. ओके, ही न्यू when it would be to his advantage to talk to someone. He rightly assessed people's worth. ठीक है, और रंगा का बिहेवियर सभी लोगों के साथ बहुत ही अच्छा था. The narrator was resting in the afternoon when Ranga came to his house with a couple of oranges in his hand. नरेटर जब आफ्टरनून में रेस्ट कर रहे थे तो रंगा उनके घर आए अपने हैंड में 2 ऑरेंजेस लेके. The narrator regarded him as a generous, considerate fellow. तो रंगा ने उनको कंसीडर किया एक जनरस और कंसिडरेट फेलो. ही थॉट दैट इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड टू बी सर्विस टू द सोसाइटी. और नरेटर ने सोचा कि वो एक बहुत अच्छे पर्सन होंगे अगर वो किसी के साथ मैरी करेंगे. ओके, और सोसाइटी के लिए वो अच्छी सर्विस देंगे. ही आस्क्ड रंगप्पा व्हेन ही प्लान टू गेट मैरिज. तो रंगप्पा रंगा का ही नेम है. ओके, सो उन्होंने रंगा से पूछा, रंगप्पा आपने अपनी मैरिज के बारे में क्या प्लान किया है. रंगा रिप्लाइड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू मैरी जस्ट दैन. ओके, रंगा ने रिप्लाई किया कि वो मैरिज करने वाले नहीं है अभी. ही नीडेड टू फाइंड द राइट गर्ल, क्योंकि उनको एक राइट गर्ल को फाइंड करना है. ही थॉट दैट रामाराव's niece रत्ना, a pretty girl of 11, would be the most suitable bride
फॉर हिम। सो नरेटर ने सोचा कि रामाराव की जो नीस है रत्ना, वो 11 ईयर की प्रीटी गर्ल है जो कि सुइटेबल ब्राइड हो सकती है रंगा के लिए। सो रत्ना के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसलिए रामाराव अपने घर पे उसको लेके आए हैं। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन एंड न्यू हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम। वो एक बिग टाउन से थी, इसलिए उसको पता था कि बीना कैसे बजानी है और हारमोनियम कैसे बजाना है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा स्वीट थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर वेंट टू रामाराव's हाउस। नेक्स्ट मॉर्निंग नरेटर रामाराव के घर जाते हैं एंड टोल्ड हिज वाइफ टू आस्क रत्ना टू फेच सम बटर मिल्क फ्रॉम हिज हाउस। और रामाराव की वाइफ को बोलते हैं कि रत्ना को उनके घर भेजें बटर मिल्क लेने के लिए। बटर मिल्क मीन्स लस्सी। When रत्ना केम ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। जब रत्ना नरेटर के घर पे आती है बटर मिल्क लेने के लिए, तो नरेटर उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके लिए गाना गाए। ओके, ऑन दिस फ्राइडे शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। ठीक है, और उस फ्राइडे रत्ना ने एक ग्रैंड साड़ी पहनी हुई थी। द नरेटर हैज सेंट फॉर रंगा टू। नरेटर ने रंगा को भी बुला के रखा था। वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग रंगा रीच द डोर। जब वो गाना गा रही थी उसी टाइम पे रंगा भी डोर पे पहुंच जाता है। ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर एंड पेप्ड इन। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि वो देखे कि कौन गाना गा रहा है। उस सिंगर को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, इसलिए वो अंदर झांकता है। द लाइट कमिंग इन द रूम वॉज ब्लॉक। जैसे ही वो अंदर झांकता है तो रूम की जो लाइट थी वो ब्लॉक हो जाती है। सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर रंगा स्टॉप्ड एब्रप्टली। जब वो देखता है कि अंदर एक स्ट्रेंजर है जो गाना गा रही थी, तो रंगा एब्रप्टली रुक जाता है। शी स्टूड एट डिस्टेंस, हर हेड लोड। अब जब उसने रंगा को देखा रत्ना ने, तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है और थोड़े से डिस्टेंस में अपने सिर को झुका के खड़ी हो जाती है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और रंगा उसकी तरफ देखते रहते हैं। ही सेड दैट हिज अराइवल हैड मेड हर स्टॉप सिंगिंग एंड ऑफर टू लीव। सो रंगा ने बोला कि उसने रत्ना की सिंगिंग में इंटरप्शन किया है तो उसको जाना चाहिए, बट ही डिडंट लीव। उसके वर्ड्स क्या थे? मेरे वर्ड्स थे। ठीक है, वो बोल ही रहा था कि उसको जाना चाहिए थी, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। रत्ना ओवरकम बाय शाइनेस रन इनसाइड। ठीक है, रत्ना शाइनेस में थी। ठीक है, वो थोड़ा सा ओवरकम करती है और अंदर भागती है। रंगा आस्क्ड द नरेटर हु दैट गर्ल वाज। रंगा ने नरेटर को पूछा कि वो गर्ल कौन थी। ही ऑल्सो एक्सप्रेस द होप दैट शी वॉज नॉट मैरिड। उसने अपनी होप को भी दिखाया कि वो गर्ल मैरिड नहीं थी। द नरेटर नोटिस्ड हिज एक्साइटमेंट। नरेटर ने उसके एक्साइटमेंट को नोटिस किया एंड सेड दैट शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। और उसको बोला कि उसकी 1 ईयर अगो मैरिज हो चुकी है। द नरेटर नोटिस साइंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑन रंगाज फेस। नरेटर ने रंगा के फेस पे जो डिसअपॉइंटमेंट थी उसको नोटिस किया। रंगा लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी सी देर बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर शास्त्री जी। नेक्स्ट मॉर्निंग नरेटर एस्ट्रोलॉजर के पास गए, शास्त्री जी के पास गए एंड टोल्ड हिम टू कीप एवरीथिंग रेडी। और उसको बोला कि वो हर एक चीज़ को रेडी रखे टू रीड द स्टार्स, स्टार्स को रीड करने के लिए। ही ट्यूटर्ड द एस्ट्रोलॉजर इन ऑल दैट ही वांटेड हिम टू सी। ओके, अब उसने एस्ट्रोलॉजर को, शास्त्री जी को पूरी तरह से ट्यूटर कर दिया और उसको बोला कि जितना भी उसको ट्यूटर किया गया, जितना उसको बताया गया, बिल्कुल वो वैसा ही वहाँ पे बोले। देन ही एस्कॉर्टेड रंगा टू द शास्त्री हाउस। ओके, और उसके बाद वो रंगा को शास्त्री के हाउस पे लेके गए। शास्त्री जी फ्रेज्ड एस्ट्रोलॉजी एज एन एंशिएंट साइंस। अब शास्त्री जी ने एस्ट्रोलॉजी को एज एन एंशिएंट साइंस फ्रेज किया, उसकी तारीफ की। ही आस्क्ड रंगा स्टार, तो उसने रंगा के स्टार के बारे में पूछा। रंगा डिडंट नो, लेकिन रंगा को नहीं पता था। आफ्टर मेकिंग सम कैलकुलेशन शास्त्री जी सेड दैट रंगा वॉज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल। ओके, अब जैसे शास्त्री जी को बोला गया था, नरेटर ने पूरी तरह से शास्त्री जी को ट्यूटर किया था कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से रंगा को बताना है कि वो एक गर्ल के बारे में सोच रहे थे। तो शास्त्री जी वैसे करते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं कि वो एक गर्ल के बारे में सोच रहे थे। ओके, सो टू द नरेटर्स क्वेश्चन एज टू हु दैट गर्ल वॉज, द शास्त्री सेड दैट शी हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। ठीक है, अब जब नरेटर ने पूछा कि वो गर्ल कौन थी, तो शास्त्री जी ने बोला कि उस गर्ल का नाम सी में होने वाले, ओशन में होने वाली चीज़ों के नाम से हो सकता है, लाइक कमला, प्राची, मॉस, पर्ल, रत्ना द प्रीशियस स्टोन। ओके, इन नेम से हो सकता है। ओके, सो द नरेटर रिमेंबर दैट द नेम ऑफ गर्ल इन रामाराव's हाउस वॉज रत्ना। ओके, अब नरेटर ने याद किया कि रामाराव के घर में जो गर्ल है उसका नाम रत्ना है। ही आस्क्ड इफ देयर वॉज एनी चांस ऑफ देयर नेगोशिएशन बेयरिंग फ्रूट। ठीक है,
सो अब यहाँ पे नरेटर ने पूछा कि क्या उनके नेगोशिएशन के बारे में, क्या उनके मिलने के कुछ चांस है। शास्त्री गेव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब शास्त्री ने यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगा's फेस। अब रंगा के फेस पे एक सरप्राइज आता है एंड सम हैप्पीनेस एज वेल, और उसके फेस पे एक हैप्पीनेस भी आ जाती है। द नरेटर ऑब्जर्व दैट गर्ल वॉज मैरिड। अब नरेटर ने ऑब्जर्व किया, मीन्स नरेटर ने ये भी बताने की कोशिश की कि वो जो गर्ल है वो तो मैरिड है। ही नोटिस दैट द रंगा's फेस had फॉलन। अब जैसे ही रंगा ने ये सुना, नरेटर ने नोटिस किया कि रंगा का जो फेस था, ठीक है, वो सैड हो गया। ऑन द वे दे पास्ड बाय रामा राव's हाउस। अब जब वो वापस जा रही थी तो ऑन द वे रामा राव का घर आता है। रत्ना वॉज स्टैंडिंग अलोन एट द डोर, और रत्ना अलोन डोर पे खड़ी हुई थी। द नरेटर वेंट इन अलोन। नरेटर घर के अंदर अकेला जाता है। ही केम आउट इन अ मिनट एंड गेव द न्यूज़ दैट गर्ल वॉजंट मैरिड। 1 मिनट के अंदर नरेटर बाहर आता है और रंगा को एक हैप्पी न्यूज़ देता है कि रत्ना मैरिड नहीं थी। ही रिमार्क्ड दैट वट एवर शास्त्री टोल्ड दैम हैड टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। ओके, अब वो रिमार्क करता है कि शास्त्री ने जो भी बोला था, ठीक है, वो सारा का सारा ट्रू हुआ। ही आस्क्ड रंगा इफ ही हैड बीन थिंकिंग ऑफ हर। ठीक है, अब उसने रंगा को पूछा क्या वो भी रत्ना के बारे में सोच रहा था। रंगा एडमिटेड इट। अब रंगा ने इसको एडमिट किया। रंगा वॉज मैरिड टू रत्ना। अब रंगा की मैरिज रत्ना के साथ हो जाती है। Years later, Rangappa invited the narrator for dinner on the occasion of 3-year-old son Shyama's birthday. Okay, so years later, कुछ years के बाद रंगप्पा नरेटर को डिनर पे बुलाते हैं क्योंकि उनकी सन का 3rd बर्थडे था और उन्होंने अपने बेटे का नाम नरेटर के नाम से ही रखा था, श्यामा। ओके, यंग श्यामा रश टू द नरेटर। यंग श्यामा नरेटर की तरफ भागते हुए आता है एंड पुट इज आर्म्स राउंड इज नरेटर्स लेग्स, और अपनी आर्म्स नरेटर की लेग्स में डाल देता है। द नरेटर किस्ड हिम ऑन हिज चीक। अब नरेटर उसके चीक पे किस करता है एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और एक रिंग उसकी टाइनी लिटिल फिंगर में पहना देता है। द नरेटर ऑल्सो रिवील्ड दैट रंगा's वाइफ वॉज 8 months प्रेगनेंट दैन। ओके, और नरेटर ये भी रिवील करता है कि जो रंगा की वाइफ थी वो 8 month प्रेगनेंट थी। दस रंगा वॉज लीडिंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ विथ रत्ना, और इस तरह से रंगा हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहा था रत्ना के साथ। ओके, so that's all for today. I hope you all have understood this chapter very well. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.